हेलो फ्रेंड्स, आई होप doing good and सब अपना weekend enjoy कर रहे हैं. In the past also I have shared some of the market analysis videos and also the stock analysis video. And last week ही हमने Putra Phillips के बारे में discuss किया था. And on Sunday also I had shared the chart. And if you see, the price have almost moved up by around 250 points and had given a returns of around 18 to 90% in short term. Like सिर्फ 3-4 दिन में Putra Phillips ने around 80 to 90% का return भी दिया है to the traders. So those who are holding this particular stock, then you can definitely hold it for the final target as well. So without wasting your time, and on this weekend, I will be covering about the market analysis for next week, and हम discuss करेंगे कि कैसे market लग रहा है in short term, long term, and some of the sectors that one should look for. And also हम ये भी discuss करेंगे कि कौन से stocks जो है वो watch list में रखना चाहिए for short term trade to investments के purpose के लिए. So without wasting time, हम videos technical analysis start करते हैं for Nifty first. सो अगर आप यहाँ पे अभी देखो तो मैंने यहाँ पे आवरली चार्ट ओपन किया है. डेली चार्ट में डेटा इज नॉट दैट गुड. इसके लिए हमने आवरली चार्ट ओपन करके वी आर डूइंग द एनालिसिस राइट नाउ. सो अभी यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाई है, ब्लू एंड येलो लाइन. सो एज ऑफ नाउ ब्लू लाइन को इग्नोर करो, सिर्फ येलो लाइन पे देखो. सो येलो लाइन इज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी. यहाँ पे एक सपोर्ट था निफ्टी को, फिर यहाँ पे अगेन इट टुक सपोर्ट. एंड यहाँ पे अगर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन दिया था, वापस से ऊपर है, वापस ब्रेक डाउन किया, वापस ऊपर गया. बट एट द एंड ऑफ द डे इस जो निफ्टी है वो येलो लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है. सो अभी के केस में निफ्टी हैड क्लोज अबाउट सपोर्ट लाइन. एंड अगर हम देखें तो सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, बहुत पास में ट्रेड कर रहे हैं. सो व्हाट वन शुड डू इज one can look to buy some stocks of Nifty or some stock for short term purpose only. तो ये एक पार्ट ऑफ एनालिसिस है. अभी हम दूसरा पार्ट भी कवर करेंगे. नाउ जस्ट लुक एट द ब्लू लाइन फर्स्ट. सो यहाँ पे ब्लू लाइन भी एक सपोर्ट का ही काम कर रहा था बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. यहाँ पे एक सपोर्ट था. अभी if this Nifty breaks yellow line in the next week, then the next support that one can look for is this particular blue line, and that level is around 17,400. So मोटामोटी अभी from current price it is only 120 points away from the current price. ज़्यादा दूर नहीं है. So instead of waiting for level 17,400 support line, so what one can do is on Monday or on any particular day, just buy some stocks for short term. And if the Nifty comes at 17,400, one can add more stocks. Particularly, थोड़ा cash रख के one can wait for 17,400 levels to add or buy some more stocks. And if this blue line support also breaks, then possibly we can see some sort of correction in Nifty or overall market. So one should be cautious if Nifty breaks this blue line, which is the final support level for Nifty itself. So this is about the Nifty analysis. Now we will be studying about Nifty Bank or Bank Nifty. So in Bank Nifty also I have opened the hourly chart only. And अभी हम यहाँ पे देखें तो ये ब्लू लाइन सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट. यहाँ पे उसने फेक ब्रेकडाउन दिया था, बट अगेन इट्स रिकवर्ड एंड उसके ऊपर क्लोज करके नाउ अगेन इट रैलीड यहाँ से सपोर्ट पे. अभी हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे अगेन उसने सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है. उसके नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था इन आवरली टाइम फ्रेम, बट उसके ऊपर आ गया अपने आप. एंड नाउ अभी हम देखें तो इसके ऊपर ही वो सपोर्ट लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो है रिस्क बहुत कम है. इफ एनीवन इज लुकिंग टू गो लॉन्ग इन एनी बैंकिंग स्टॉक्स और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी, so what one can do is one can add bank Bs or some banking stock, and one can keep a stop loss at this particular level, which is 38,675. So this can be a stop loss for a trader who is looking forward to go long at this particular level. And the current price is around 37,250. So यहाँ से if we calculate the risk, it is around 350 points का stop loss है, which is around 1% for Bank Nifty. And यहाँ से जो upside one trader can look is the all-time high level, which is 38,400, which is almost 1,000 points above the from the current price itself. तो अभी तो है यहाँ पे वो बहुत low risk level पे trade कर रहा है. And if it gives a breakdown and close below this blue line, अगर यहाँ के नीचे close होकर sustain करता है, then possibly we might see some correction in Bank Nifty as well. As of now, there is no sign of correction or dip in Nifty or Bank Nifty both.
So one should definitely look for these two particular indexes and this particular for short-term trading. So one method to trade is by trading in futures or options of बैंक निफ्टी जो कि already available है. निफ्टी futures बैंक निफ्टी के options सारे available है. But I would suggest जो कि if you have a less capital and एकदम newbie है तो try to trade this particular indexes using bank bees or nifty bees index, nifty bees ETF. So they are ETF exchange traded fund that can be traded on the exchange itself. मतलब stock के जैसे ही listed है, one can buy and sell those ETF. वहाँ पे आपको leverage नहीं मिलेगा. So particularly उसका जो भी रहेगा you will have to pay and उस पे वो leverage वगैरह नहीं है. So one can easily play or trade this particular the thing that we have discussed right now. अगर अगर हमारा इस स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट होता है तो पॉसिबली इन फ्यूचर्स वी माइट लूज अराउंड 5 to 6% ऑफ द कैपिटल. बट अगर हमारा बैंक बीस या निफ्टी बीस में स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट हो रहा है तो हम वी विल लूजिंग ओनली 1% ऑफ द कैपिटल. सो जस्ट गो विद दिस माइंडसेट कि आपका रिस्क कम है इन निफ्टी बीस और बैंक बीस जहाँ पे आपका लेवरेज भी नहीं है. And one can definitely like look for to trade in bank bees or nifty bees if they are not comfortable with future and options. That I would suggest not to trade in derivative segment right now if you are beginner. So one can look for this two particular index. Apart from this, if you see the sector rotation sheet, so currently there are 5 sectors that are positive. And अगर हम यहाँ पे देखें so nifty auto, nifty energy, nifty media, PSE and तो जो इंडेक्स है वो रिसेंटली पॉजिटिव हुए करंटली. सो इफ यू चेक द कॉन्सेप्ट एज वेल, बट जो निफ्टी एनर्जी इट इज अ स्ट्रांग बाय व्हिच मींस ये सेक्टर और ये जो इंडेक्स है बहुत स्ट्रांग है करंटली फॉर अ पोजिशनल ट्रेड. एंड वन कैन डेफिनेटली लुक टू ऐड सम ऑफ द एनर्जी स्टॉक्स दैट आर रीटेस्टिंग और आर गिविंग ब्रेकआउट्स फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजीशन. कैन चेक द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल फॉर एनर्जी सेक्टर. तो अभी हम एनर्जी सेक्टर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे तो देयर आर so many stocks that are positive. So one can take a note of this and definitely check the chart. We will be covering about one stock in this as well in the stock analysis part. So apart from this, अगर हम अभी निफ्टी पीएससी के बारे में देखें तो so in PSC there are so many stocks that are positive. Coal India is strong by NTPC, Oil India is strong by in PSC and in PSU banks अगर हम देखें so in PSC so in PSU bank also there are only which is bank Indian SBI other all the PSU banks are positive. So आप लोग ये सब स्टॉक के बारे में देख के you can definitely do your study on charts and if you want you can share this with us on the Twitter ID that I will be sharing in the description section. So these all things you can definitely look because these are all filtered stock that one should definitely look for short term buy basically. So this is about the sector rotation sheet. अभी हम एक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे which is pharma sector. सो यार अभी हम यहाँ पे दो एनालिसिस करेंगे. एक तो हमारा जो नॉर्मल फार्मा का जो चार्ट है वो एंड सेकंड इज द रेशियो चार्ट. तो रेशियो चार्ट के बारे में आपको बताता हूँ उसके बारे में बट लेट्स स्टडी द निफ्टी फार्मा चार्ट फर्स्ट. यहाँ पे भी हमने दो लाइन बनाया है. सो फर्स्ट इज द येलो लाइन एंड ब्लू लाइन. पहले हम ब्लू लाइन देखते हैं. सो ब्लू लाइन वाज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड यहाँ पे उसने ऑन फ्राइडे इट गिव अ ब्रेकआउट अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल. एंड जो हमारा येलो लाइन है वो भी रेजिस्टेंस ही था बेसिकली फॉर द स्टॉक एंड इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया है. सेम कैंडल ने दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है करंटली. एंड अगर हम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देखें टारगेट कैलकुलेट करें सो इट विल बी इसका हम रेंज कैलकुलेट करके फ्रॉम हाई टू लो हम इसको ब्रेकआउट के ऊपर ऐड कर देंगे बेसिकली. तो जो हमारा टारगेट आ रहा है ऑन फार्मा इंडेक्स विच इज 715,681 एंड जो करंट प्राइस है 15,581 है. तो अराउंड 1100 पॉइंट्स का जो upside it is seen in pharma sector, pharma index itself. So one can check Nifty pharma index and and if you find anything interesting on charts तो हम sector rotation में भी हम देख लेते हैं. निफ्टी फार्मा हमारे पास यहाँ पे भी है. सो ये सारे स्टॉक्स है जो पॉजिटिव है इन निफ्टी फार्मा. सो ये स्टॉक्स आप लोग ट्रैक कर सकते हैं और इफ एनी अदर स्टॉक्स वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो. एंड दिस इज अबाउट द सेक्टर दैट इज good for short term purpose
एंड दिस इज ऑल्सो डिफेंसिव सेक्टर. अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट भी करता है तो दिस सेक्टर यहाँ के स्टॉक यू कैन डेफिनेटली होल्ड इन योर पोर्टफोलियो एंड इट माइट बी एक्टिंग एज अ डिफेंस और थोड़े अच्छे से रिटर्न्स भी दे सकता है इन योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट. सो वन कैन चेक फार्मा इंडेक्स एज वेल. अभी हम स्टॉक स्टडी यहाँ पे हम लोग अभी एक और चीज करना, तो हम लोग यहाँ पे भी रेशियो स्टडी भी करेंगे बेसिकली. सो यहाँ पे जो फार्मा है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे निफ्टी से. सो ये रेशियो है बेसिकली सीएनएक्स फार्मा का रेशियो है सीएनएक्स फार्मा टू निफ्टी. तो हम इसका जो रेशियो चार्ट है वो ओपन करेंगे. एंड ये जो रेशियो चार्ट है द गुड वे टू स्टडी दिस रेशियो चार्ट इज द लाइन चार्ट बिकॉज यहाँ पे नॉइस नहीं रहता इतना एंड देयर इज नो विक्स एंड कैंडल वगैरह. सो अभी हम यहाँ पे अगर जैसे कि आप देख रहे हो आई हैव ओपनड द डेली टाइम फ्रेम चार्ट. सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो इन अप्रैल यहाँ पे इसने सपोर्ट किया था यहाँ पे एंड फ्रॉम अप्रैल हमने सबने देखा कि फार्मा ने बॉटम बना के एड रैलीड एंड गिवन गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स. यहाँ पे अगेन इन मार्च इट सपोर्ट ईयर एंड अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वापस से इसने सपोर्ट लिया है. सो जस्ट रिमेंबर दिस 3 डेट्स विच इज 26 मार्च 19 मार्च एंड अगेन 27 सितंबर. तो हम इधर के भी चार्ट्स देख लेते हैं कि फार्मा ने कैसे परफॉर्म किया बेसिकली. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सपोर्ट कर रहा है बेसिकली. ये जो लो रिस्क था फार्मा इंडेक्स एंड पॉसिबली नियर इन अपकमिंग डेज फार्मा इंडेक्स कैन आउट परफॉर्म निफ्टी इंडेक्स एज वेल. सो दिस रेशियो चार्ट मीन्स दैट पर्टिकुलरली कि अगर ये सपोर्ट से बाउंस ले रहा है तो निफ्टी फार्मा आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है इन अपकमिंग डेज. अगर हम एक सैंपल अगर आपको दिखाना है तो मैं आपको 19 मार्च का डेटा दिखा लेता हूँ बिकॉज तभी भी फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया था फ्रॉम 19 मार्च. सो 19 मार्च जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो व्हाइट लाइन जो है वो 19 मार्च है एंड यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे फार्मा इंडेक्स ने रैली दिया था अच्छा खासा एंड इट डिड आउट परफॉर्म बेसिकली. और हम परसेंटेज टर्म्स में देखें रिटर्न्स वो भी तो it was a 25.5% का रैली फ्रॉम 19 मार्च. यहाँ से had outperformed basically at given at 25% returns. और similarly जो 20 यहाँ पे जो है यहाँ का लो बना के traded. So particularly the ratio charts help in identifying a stock or strong stock or indexes which are relatively strong compared to Nifty and it can help in identifying this particular stock or chart index at the right time. But and उस particular index से stock को track करके definitely can take the index. So this is about the ratio chart and pharma index में signs of positivities. यहाँ पे एक तो उसने resistance break किया है and second is the ratio chart को support पे. If it moves up तो यहाँ पे हमें again अच्छा खासा रैली देखने मिल सकता है in short term. So this is about pharma index. Now we will be seeing about a stock. So पहला stock जो है वो TVS मोटर है. So TVS मोटर ने यहाँ पे एक न्यूज पे because of न्यूज यहाँ पे गैप अप दिया था. उसके बाद ये गैप फिलिंग करने आया था एंड अगेन इट वेंट डाउन. अगर हम ये करेक्शंस देखें इन परसेंटेज टर्म्स सो इट इज अ करेक्शन ऑफ अराउंड 25%. अभी हम ये देखें डाउन ट्रेंड है हो रहा है यहाँ पे बट अगेन यहाँ से वो नीचे नहीं आ रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग लोअर लोज हायर लोज एंड हायर हाइज बेसिकली. यहाँ पे जैसे कि येलो लाइन रेजिस्टेंस है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड अगर देखें कप एंड हैंडल पैटर्न बेसिकली. सो दिस इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न. ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में बताते हैं. यहाँ पे ऑन फ्राइडे इट गेव track this particular stock and buy this at current price which is 563. The stop loss will be this particular low which is 530. कैंडल का लो बेसिकली टारगेट 630 एंड जो टारगेट है ये हमें कैलकुलेशन से आया है बेसिकली. So I will do a range calculation here. So ये हाई था ये लो था and then we have added this particular level. जो हमारा टारगेट जो 630 का है वो हमको वहीं से यहीं से आया बेसिकली. सो दिस इज द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक दैट वन कैन लुक फॉर शॉर्ट टर्म जो कि TVS मोटर है. एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम. सो पहले हम आईसेक देखते हैं एंड देन वी विल चेक हिंदुस्तान पेट्रोलियम. सो आईसेक वाज इन अप ट्रेंड फ्रॉम अप्रैल
377 से it gave a rally to around 800, which is रैली ऑफ अराउंड 2x, यानी कि डबल हुआ था बेसिकली। और ये रैली के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था बेसिकली, एंड जो ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, सो इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट अबाउट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन, ये जो अपर ब्लू लाइन है उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो वी माइट सी अ स्ट्रांग uptrend again in this particular stock. So what one can do is one can accumulate ICICI securities for short term, and the buying price would be around 761. The stop loss will be 700 and target will be 945. Again इसका जो रेंज कैलकुलेशन करके हमने टारगेट निकाला है फॉर शॉर्ट टर्म. So this can be another stock that one should look for in the that one should, and one can wait for breakout also. One can add at current price as well, because current price पे यहाँ पे जो risk है वो बहुत कम है. But again breakout का wait करके if one want to buy, that is also fine, because वो confirmation हो जाएगा for the continuation of uptrend. So the second stock can be ICICI Securities for short term. Stock is HPCL. So इसका हमने सेक्टर रोटेशन में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी एनर्जी सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, एंड हमें कुछ स्टॉक्स भी स्टडी करनी चाहिए इसके ऊपर. सो फर्स्ट, तो आई हैव ओपनड वीकली टाइम फ्रेम चार्ट बिकॉज इट इज नॉट अ डेली, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा बेसिकली. सो अभी हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया विच इज येलो लाइन. ये रेजिस्टेंस है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड यहाँ से वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम. सो इस स्टार्ट द कंसोलिडेशन स्टार्टेड फ्रॉम जून 2019, एंड ये अभी तक वही कर रहा है. सो बेसिकली 2 years हो चुके हैं, इट इज बिलो दिस रेजिस्टेंस लाइन. और यहाँ पे आप नेकेड से भी देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है विच इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो आई विल ड्रॉ दिस. So this is an inverse head and shoulder pattern, and this is a reversal pattern basically. And यहाँ से अगर breakout देता है, then we might see an uptrend in any particular stock जिसका shoulder के पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर. सो यहाँ पे जो है वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था उसके पहले. इसका जो हाई था वो 500 के आसपास है, एंड इट वाज इन द डाउन ट्रेंड. अभी हम अगर if we wait for a breakout above this resistance line which is around 307 and current price is 298, ज़्यादा difference नहीं है, and one can look to add this particular stock at current price which is 298. The stop loss will be 240 and target will be 490 in this case, and जो target 498 is the all time high level for this particular stock, जो कि 2017 का all time high level से. So this can be the target for Hindustan Petroleum. तो इसमें basically it is a positional trade जो कि you might help to hold this position for might be for more than 1 year as well. So the strategy is don't this particular stock, just add some track it, tip दिखाता है, so that when one can look to add this particular stock if it shows dip as well, and as long as it is above the stop loss which is 240. So one should keep adding this particular stock in the portfolio for the positional trade or investment. And if it gives a breakout above 307, then the single head and shoulder pattern will be completed, and हमें अच्छा खासा ऊपर के साइड पे मूव देखने को मिल सकता है. So this is another stock that one should track for their investment, particularly not for trading. So this is about Hindustan Petroleum chart, and this is all about for today's market analysis video. And आपको इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिला हो, and if you want more such informative videos in the future, then you can subscribe to our channel, and also you can like this particular video so that we will be motivated to share more such video in the future as well. You can follow us on Twitter and Telegram. These are the IDs, and where I'm regularly sharing about market updates. यहाँ पे आप हमें follow करके you can connect with us, and we will be sharing market updates, daily market updates regularly. So you can visit also with this video. Thank you guys.